So far we have discussed product design in our last lecture. Though product design is most important, but it cannot be separately considered from the selection of the process. In today's lecture we will discuss about process selection. As we already know that production or operations management involve transformation of the resources inputs into the outputs. Now what are the resource inputs? For example, your machinery, your money, or your human resources, machine or material. These are the inputs, resource inputs. And what are the outputs? Outputs are your product or services. And what is a process? A process is a set of actions which transform inputs into the outputs. तो प्रोसेस आपका क्या होता है कि एक्शन, सेट ऑफ एक्शंस होता है जो आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को आउटपुट में. तो आप कोई ना कोई एक्शंस करते हैं, वो जो एक्शंस होते हैं, सेट ऑफ एक्शंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस. द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट में इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस. For example, if goods are made to order, the process used will be different from those when goods are made to the stock or assembled to the orders. ठीक है. तो जब आप अगर आप गुड्स बना रहे हैं ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली, तो उसमें जो प्रोसेस आप यूज़ करें वो डिफरेंट होगा. जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप गुड्स बना रहे हैं स्टॉक करने के लिए, ठीक है. सो द चॉइस ऑफ द प्रोसेस मस्ट बी मेड केयरफुली एज अ रॉन्ग चॉइस विल रिजल्ट इन द वेस्टफुल एफर्ट एंड एडिशनल कॉस्ट. तो जब भी आपने प्रोसेस को सिलेक्ट करना है या चूज़ करना है तो इसके आपको केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रॉन्ग प्रोसेस जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि आपकी जो एफर्ट है और आपकी कॉस्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगी. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉमन बेसिक प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन इज कन्वर्जन. व्हाट इज कन्वर्जन? टू कन्वर्ट समथिंग इनटू समथिंग. फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट क्रूड ऑयल इनटू gas or petrol or diesel and so on. Now the second process is fabrication. Now what is fabrication? This process alters the form and the shape of the material. For example, a steel sheet may be changed into a car fender or car doors or any part of the car. Third is assembly. Now what is assembly? सब components and the parts are assembled into the products. जिसमें आप सब components और parts को assemble करते हैं कोई product बनाने के लिए. For example, car assembly line. Now let's see what is process flow structure or production processes. A process flow refers to how an organization organizes material flow using the basic processes listed earlier. As we have discussed in our last slide, there are three common or basic processes, that is conversion, fabrication और assembly. So एक ऑर्गेनाइजेशन इन सारे प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए किस तरह से मटेरियल फ्लो को ऑर्गेनाइज करती है. There are four major process flow structures, or we can say there are four production processes. Now the first production process is job shop or project. Second is batch production. Third is flow methods or assembly line, and the last is continuous flow. Now let's discuss these production processes one by one. The first one is job shop or project. What is this? It refers to the processes where the complete task is handled by a single worker or a group of workers. ठीक है, ये कैसा प्रोसेस होता है जिसमें सारा टास्क जो होता है, कंप्लीट टास्क होता है, एक सिंगल वर्कर, एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उसको हैंडल कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अ हेयर ड्रेसर और अ टेलर or bridge construction or a shipbuilding. These are all the examples of this type of processes. These examples range from small scale involving use of the low technology to the large scale, often relying on the higher technology. Now let's see what does this mean, low technology and higher technology, in our coming slide. Now what is लो टेक्नोलॉजी जॉब? यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया. लो टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है, टेलर की एग्जांपल लेते हैं. वो क्या करता है, ऑर्डर के हिसाब से सूट्स प्रोड्यूस करता है, मेजरमेंट्स लेता है, कट द क्लॉथ एंड स्टिच द सूट एंड दैट्स इट. एंड ही यूज़ मल्टी स्किल्स. और उसका जो टास्क होता है वो लेबर इंटेंसिव होता है. और इक्विपमेंट जो वो यूज़ कर रहा है वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल स्विंग मशीन है तो वो क्या अवेलेबल होता है व्हेन एवर ही नीड्स. तो ये लो टेक्नोलॉजी जॉब. Now let's see what is high technology jobs. High technology jobs, yeah, projects involve a large sum of money and take considerable time to complete. ठीक है.
ऑब्वियसली अगर प्रोजेक्ट है उसमें क्या है कि आपके मनी जो है बहुत ज़्यादा आपको मनी चाहिए होती है और ऑब्वियसली एक टाइम चाहिए होता है उसको कंप्लीट करने के लिए. व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट इज़ अ यूनिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टाइम एंड रिसोर्सेज. ऑब्वियसली आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो ऑब्वियसली एक यूनिक एक्टिविटी, हर स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट कराता है, एक यूनिक एक्टिविटी परफॉर्म करा होता है और उसमें ऑब्वियसली आपको टाइम और रिसोर्सेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है. इट हैज़ अ डेफिनेट बिगिनिंग एंड डेफिनेट एंड. ठीक है, ऑब्वियसली इसका एक स्टार्टिंग की एक डेट होती है, उसके एंड की भी एक डेट होती है. एंड कस्टमर इंट्रैक्शन फॉर द प्रोजेक्ट इज़ वेरी हाई एंड द कस्टमाइजेशन इज़ प्रोवाइडेड. ठीक है, इसमें कस्टमर इंट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और आप कस्टमाइजेशन प्रोवाइड की जाती है इसमें, मतलब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली आपको उस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो करके देता है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द शिप बिल्डिंग. शिप बिल्डिंग करने जा रहे हैं तो उसमें क्या है, शिप्स आर built to the specific orders. They take obviously considerable time and involve heavy capital. The task is completed by the team of workers performing different tasks on it. The team of the workers are specialized in their own fields and latest technology is involved. ठीक है, तो ये क्या हाई टेक्नोलॉजी जॉब्स. Now let's see what is the second production process or second production method is the batch production. What is batch production? It is a method used to produce identical products in groups or in batches. In this method, the process is divided into the parts or operations and an operation is performed on the complete batch before it is passed on to the next operation. ठीक है, तो बैच प्रोडक्शन में क्या है, ये आइडेंटिकल या सिमिलर प्रोडक्ट्स को ग्रुप्स में या बैचेस में प्रोड्यूस किया जाता है और इस मेथड में क्या होता है कि प्रोसेस को आप डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में या ऑपरेशंस में. और आप ऑपरेशन जब तक आप पूरे बैच पर ऑपरेशंस को कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक आप उस बैच को नेक्स्ट ऑपरेशन में मूव नहीं करते. इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, आपकी फास्ट फूड आ जाता है, आपकी क्लोथिंग्स आ जाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स एंड फर्नीचर. ये सारी क्या एग्जांपल्स हैं आपकी बैच प्रोडक्शन की. फॉर एग्जांपल अगर क्लोथिंग की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या है कि अ बैच ऑफ डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस. मतलब एक अगर स्मॉल साइज़ है तो उसका एक बैच होगा, लार्ज साइज़ का एक और बैच होगा, इस तरह से मीडियम का एक बैच होगा और इसी तरह से कलर्स का भी डिफरेंट बैचेस होंगे. तो सभी बैचेस को जो है बैचेस में प्रोड्यूस की जाती हैं चीज़ें, जैसे कि नाम से पता चला बैच प्रोडक्शन. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बैच प्रोडक्शन फ्रॉम दिस फिगर. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोसेस हम यूज़ करें दैट इज़ फैब्रिकेशन. जैसे कि हमने बताया था 3 कॉमन प्रोसेसेस होते हैं, फैब्रिकेशन, कन्वर्जन एंड असेंबली. तो हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि फैब्रिकेशन एक प्रोसेस है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं. जैसे कि हमने कहा बैच प्रोडक्शन में हम प्रोसेस को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स में या ऑपरेशन में. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल फैब्रिकेशन इज़ अ प्रोसेस एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ऑपरेशंस और पार्ट्स, दैट इज़ लेथ वर्क, ड्रिलिंग एंड पेंटिंग. ठीक है, तो फैब्रिकेशन एक प्रोसेस है और इसको 3 ऑपरेशन में हमने डिवाइड किया है. वो क्या है आपका 3 ऑपरेशन. ऑपरेशन 1 फॉर एग्जांपल आपका है लेथ वर्क, ऑपरेशन 2 है आपका ड्रिलिंग एंड ऑपरेशन 3 है आपका पेंटिंग. ठीक है, अब एक आपके पास बैच है, एक बैच 1 वो 100 यूनिट्स का बैच है. सबसे पहले आप उसको भेजेंगे ऑपरेशन 1 में. फॉर एग्जांपल लेथ वर्क इज़ द ऑपरेशन 1. जब सारे यूनिट्स पर पूरे बैच पर आप जो ऑपरेशन 1 परफॉर्म कर लेंगे, फिर आप उस बैच को मूव कर देंगे ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज़ ऑपरेशन 2. फॉर एग्जांपल ऑपरेशन 2 है आपका ड्रिलिंग. ठीक है, तो आपने जब ड्रिलिंग कर ली पूरे बैच के ऊपर तो आप बैच 1 को मूव कर देंगे टू द ऑपरेशन 3. ठीक है, ऑपरेशन 3 क्या है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग है. ठीक है, तो फिर जो पेंटिंग है ऑपरेशन 3 है वो परफॉर्म करेंगे आप पूरे बैच के ऊपर. तो इस तरह से फिनिश्ड बैच 1. तो इस तरह से सभी बैच पर ये परफॉर्म किया जाएगा 3 ऑपरेशंस और दैट्स इट. तो बैच की फॉर्म में प्रोडक्शन होती है इन बैच प्रोडक्शन. The third production process is flow method. What is flow method? In the flow method of production, the material flows from one operation to the other without any delay or the storage between operations and the operations are performed continuously. ठीक है, फ्लो मेथड में क्या है कि मटेरियल जो है एक ऑपरेशन दूसरे फ्लो ऑपरेशन में जा रहे होते हैं विदाउट एनी डिले और स्टोरेज बिटवीन द ऑपरेशन. और जो ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहे थे कंटिन्यूसली, अनलाइक बैच प्रोडक्शन where the batch is passed on to the next operation only after the whole batch has passed through the current operation. In flow method, each unit is passed from one operation to the next as soon as processing of an operation is complete. ठीक है, बैच प्रोडक्शन में हमने देखा था कि पूरा बैच जो है उस
पूरे बैच पे जब तक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता था तब तक उसको नेक्स्ट ऑपरेशन में नहीं भेजते थे। लेकिन फ्लो मेथड में ऐसा नहीं है, इसको जैसे एक यूनिट पे आपने ऑपरेशन कर लिया तो आप उसको दूसरे ऑपरेशन में भेज देते हैं। इसमें आप वेट नहीं करते, ना ही कोई स्टोरेज होती है, कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है। एंड असेंबली लाइन इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ द फ्लो मेथड। ठीक है, असेंबली लाइन में क्या हो रहा था, मटेरियल फ्लो हो रहा था linear moving assembly line and passes through the different workstations at which the operations are carried out. Now the last production process is continuous flow. This structure is used for highly standardized products produced in very high volume. जैसे क्या नेम से आपको पता चल रहा है, प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस विदाउट एनी शट डाउन। द सिस्टम इज़ हाईली ऑटोमेटेड एंड ऑपरेट्स 24 आवर अ डे। ठीक है, तो कंटिन्यूसली वर्क हो रहा था और ये हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के लिए होता है। ये स्ट्रक्चर जो है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो हाईली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के लिए होता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम या हाई क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, इसमें आपकी क्या क्या एग्जांपल्स आ जाते हैं, आपकी फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री होगी, जैसे कि आपकी सीमेंट फैक्ट्री होगी, ऑयल रिफाइनरीज होगी, आपकी पेंट फैक्ट्रीज होगी एंड सो ऑन। द वर्कर्स रोल इज़ मेनली टू मॉनिटर द इक्विपमेंट। इसमें जो वर्कर का रोल है वो क्या होता है कि आपने मॉनिटर करना है इक्विपमेंट को। सो दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। जॉब शॉप एंड बैच प्रोडक्शन मेथड्स आर कॉल्ड इंटरमिटेंट प्रोडक्शन मेथड्स एंड फ्लो एंड कंटिन्यूस मेथड्स आर क्लासिफाइड एज कंटिन्यूस प्रोडक्शन मेथड्स। जॉब शॉप और बैच प्रोडक्शन को हम इंटरमिटेंट प्रोडक्शन मेथड्स कहते हैं और फ्लो और कंटिन्यूस मेथड्स को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन मेथड। जॉब शॉप एंड बैच प्रोडक्शन मेथड्स आर कॉल्ड इंटरमिटेंट प्रोडक्शन मेथड्स एंड फ्लो एंड कंटिन्यूस मेथड्स आर क्लासिफाइड एज कंटिन्यूस प्रोडक्शन मेथड्स। जॉब शॉप और बैच प्रोडक्शन को हम इंटरमिटेंट प्रोडक्शन मेथड्स कहते हैं और फ्लो और कंटिन्यूस मेथड्स को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन मेथड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, feel free to ask. Let's meet with another video. Till then, Allah